ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਰਾਂ ਭਰੀ ਠੰਡ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੁਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਫਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ,
वज़ीर खां कहन लगा, तुहाडी उम्र बड़ी छोटी है, अजे तुसीं अपनी जिंदगी होर बड़ी बतीत कर सकते हो, मौजां माण सकते हो। उन्हां आखिया 70 साल की जिंदगी नालों 7 साल की जिंदगी किते चंगी। जे 70 साल की जिंदगी जिहड़ी है कहन लगे वो अणख ते गैरत तो बिना बतीत की जावे, वो काहदी जिंदगी? वो कोई जिंदगी नहीं जिहड़ी गुलामी दे विच बतीत होवे, जिहड़ी दर दर ते ठोकरां खा के बतीत होवे, वो कोई जिंदगी नहीं। 70 साल की जिंदगी नालों 7 साल की जिंदगी किते चंगी है, भावें थोड़ी है पर ऐणख ते गैरत वाली, ईमान वाली, चढ़दी कला वाली है। अखीर काजी नूं हुक्म होया भी इन्हां बच्चियां नूं किहड़ी सज़ा दित्ती जावे। काजी ने फतवा सुनाया, वो आखदा है भी इन्हां बच्चियां नूं नीहां विच चिण के शहीद किया जावे, कोह के। जदों काजी ने फतवा सुनाया, साहिबजादे मुस्कराउंदे ने। भरी सभा कचहरी विचों जदों जांदे ने दादी माँ कोल ते आखदे ने, माँ थोड़ा जिहा समा हो रह गया है, बस जालमा ने हुण फतवा सुना दिता है तो सानू नीहां विच चिणिया जाना है। हुण दादी माँ ने फिर हौसला दिता, अडोल रहो, डोलियो ना। हुण इधर तैयारी करती है नीहां विच चिणन दी, पर इत्थे एक मुश्किल खड़ी हो गई भी उन्हां साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणन वास्ते कोई तैयार ना होवे। काजी ने तो फतवा सुना दिता भी इन्हां नूं नीहां विच चिण दिता जावे। इस्लाम धर्म विच भी ये लिखिया है किसे सन सिर ते। उन्होंने आख्या वज़ीर खान नूं भी हुक्म होवे आपां इन्हां बच्चियां नूं नीहां विच चिण के कोह के खत्म कर देवांगे, जिहड़े साडे उत्ते केस चलन दे ने उन्हां केसां नूं खत्म कर दिता जावेगा। वज़ीर खान ने आख्या ठीक है, तुहानूं कोई सज़ा नहीं दित्ती जावेगी, पर जे तुसीं साहिबजादियां नूं नीहां विच चिण के खत्म कर दिओ। वो दो जलाद साहिबजादियां नूं शहीद करन वास्ते अगे आए। इधरों दादी माँ कोल दोवें साहिबजादे तुरन की तैयारी करते हैं। अल्लाह यार खां जोगी ने उस मंजर नूं बड़ा प्यारा लिखिया है। वो कहता है जदों साहिबजादे सामने बैठे ने ते उधरों माँ दादी माँ जिहड़ी है वो भी तैयारी करती है भी मेरे बच्चियां ने एक मुकाम ते पहुँचना है। उन्होंने एक वड्डा बिखम पैंडा जिहड़ा वो तय करना है, किते उस पैंडे नूं तय करदियां होइयां ये डोल ना जान। बड़े प्यारे एक लिखारी हुए ने मास्टर बलबीर सिंह, उन्हें एक नावल लिखिया सी खूनी दीवार, 1982 में छपिया सी। ये हुण मिलदा नहीं, पर इहदे विच बड़ी प्यारी एक कविता मैनूं पढ़न नूं मिली सी। मैं किसी किताब विच पढ़ी सी पर वो नावल मैनूं मिलिया नहीं। साहिबजादियां दी शहीदी दी गाथा लिखी मास्टर बलबीर सिंह ने, वो बड़ी प्यारी लिखी है। वो कहंदा भी जिस समय साहिबजादे इस तरह बैठे ते दादी माँ ने उस समय आखिया, उठो मेरे लाल जी उठ मता पका लो। हे मेरे लाल जी तुसीं उठो, ते उठ के कह लगे कि मता पका लो। उठो मेरे लाल जी उठ मता पका लो, सिखिया दादी माँ दी सीने विच वसा लो। निक्कियां निक्कियां बाहां ना गलवकड़ी पा लो, तुहाडियां बाहां बड़ियां छोटियां ने, एक दूजे नाल गलवकड़ी पा लो, क्योंकि फिर खरे समा मिले कि ना मिले। निक्कियां निक्कियां बाहां ना गलवकड़ी पा लो, करना दीन कबूल नहीं मन नूं समझा लो। कुछ भी हो जावे तुसी उन्हां दा दीन कबूल नहीं करना, करना दीन कबूल नहीं, तुसी मन नूं समझा लवो। खून भिजी तलवार नूं सीने ना ला लो।
छोटे छोटे जिस्म ने, दिल वड्डा बना लवो। जिस्म शरीर छोटे ने, छोटे शरीरां नूं वेख के इंज लगदा भी दिल भी बड़े छोटे होणगे, पर नहीं, माँ आखदी है छोटे छोटे जिस्म ने, दिल वड्डा बना लो। ते अगे वो लिखते ने, जाओ मर जानी मौत नूं तुसी जाके खा लो। दादी आखदी है जाओ जाके तुसी मौत नूं कहन लगे खा लवो। शेर दिलों वार जवानियां तुसी धर्म बचा लो। दादी ने आख्या अपना आप कुर्बान कर देवो, अज तुसी अपने धर्म नूं, कल तुहाडे दादे ने किसी दा धर्म बचाया सी, अज तुहाडे धर्म नूं कोई आँच देण लगा है, उस धर्म नूं बचा लो। शेर दिलों वार जवानियां तुसी धर्म बचा लो। जदों इन्नी गल आखी, दोवें साहिबजादे ते जदों सिपाही खलोते ने लैण वास्ते आए ने ना, ते दोवें साहिबजादे इस तरह उठ पे दोनों लाडले। जद फतेह बुला के उन्हां फतेह बुलाई दादी माँ नूं, उठ पे दोनों लाडले जद फतेह बुला के वार अखीरी माँ दे चरनी हथ ला के, अखीरली वार दादी दे चरनां नूं हथ लाया। उठ के उन्होंने नमस्कार की दादी नूं, शीश झुकाया। क्यों? दादी ने प्रेरणा दी सी, दादी ने सिक्ख्या दी सी, दादी ने हौसला दिता सी। तुर पे दोनों लाडले जद फतेह बुला के वार अखीरी माँ दे चरनी हथ ला के, बूहे विच परत के बोले मुस्कुरा के, माँ उड़ीकांगे असीं तेनू सचखंड विच जाके। कह लगे माँ, जदों दरवाजे विच जान लगे तो ऐन पिछे नूं मुड़ के वेखिया दादी वल ते मुस्कुराए। कह लगे दादी माँ, असीं सचखंड विच जाके तेनू उड़ीकांगे, पर ना आउणा तुसीं बहुता चिर ला के, थक ना जाइए अम्मीए असीं औंसियां पा के। माँ तुसीं बहुता चिर ला के ना आयो, असीं किते थक ना जाइए सचखंड विच तेनू उड़ीकदे उड़ीकदे। माँ साडा जी नहीं लगना, तुसी छेती आउणा। वेखो किवें आखदे ने, माँ साडा जी नहीं लगना, तुसी छेती आउणा, नहीं तां रुस जू तेरा फतेह सिंह, तेरा जी परचाउणा। आ फतेह सिंह ने रुस जाना, कर कर मिन्नतां पऊगा फिर तेनू मनाउणा। कहन लगे माँ, फिर तेनू मिन्नतां कर करके मनाउणा पऊगा। सचखंड विच कह लगे जदों असी जाना है, उस समय तेरे तो बिना सचखंड सानू चंगा नहीं लगना। माँ तेरे बाजों लोरियां दे के किन्ने सुआउणा, तेरे बाजों सचखंड नहीं पाउणा। कह लगे तेरे तो बिना कोई सचखंड चंगा लगेगा? तेरी गोदी विच रह के जो सुख माणे है, जो सुख मान रहे हैं, ये सुख सचखंड विच भी सानू नहीं मिलना, तेरे तो बिना जी नहीं लगना। अगों फिर दादी माँ ने बड़े प्यारे बोल आखे ने, चलो मेरे हीरिओ मैं मगरे आवां, ये ना सोचियो मैं देर लावांगी, तुसी तुरो मैं तुहाडे पिछे आई। चलो मेरे हीरिओ मैं मगरे आवां, पुत्तां बाजों जिउंदियां कद सुनियां मावां। कदी इस तरह होया पुत्तां तो बिना मावां जिउंदियां रह सकदियां ने। चलो मेरे हीरिओ मैं मगरे आवां, पुत्तां बाजों जिउंदियां कद सुनियां मावां। पुत्रां द्वारे रामकार मावां दियां बावां। जिवें लक्ष्मण रेखा खिंची सी ना, ते अंदर कहन लगे वो सीता सी, उन्होंने आख्या सी बई इस तो बाहर नहीं जाना, इहदे अंदर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता, तेनू कोई खतरा नहीं। कहन लगे मावां दियां बावां वो रामकार ने, जिन्ना चिर माँ का हथ सिर ते रवे कोई दुनिया की ताकत नहीं औलाद नूं छेड़ भी जावे। बड़े प्यारे बोलों ना लिखे ने, चलो मेरे हीरिओ मैं मगरे आवां, पुत्तां बाजों जिउंदियां कद सुनियां मावां। पुत्रां द्वारे रामकार मावां दियां बावां, जिधर उड़दे हंस उधर जांदियां छावां। वे लोको तोर घर दियां रौनकां मैं सचखंड वसावां। मैं अपने घर दियां रौनकां अज तोरन लगियां, पर सचखंड नूं वसाउण लगियां। उत्थे अल्लाह यार खां जोगी ने भी अपने बड़े प्यारे ख्याल लिखे ने। वो कहता है साहिबजादे लगे तुरन, ते पता की आख्या दादी माँ ने, बेटा जाने से पहले गले लगा तो लूँ।
वेखो छोटी उम्र है ना, प्यार बड़ा है। तो अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने, दादी ने आखिया बेटा जाने से पहले गले लगा तो लूँ, केसों में कंघी करूँ, मुँह धुला तो लूँ, तुहाडे केसां विच मैं कंघी कर देवां, तुहाडे मुँह नूं धुआ देवां, नन्हे नन्हे सिरों पे कलगी सजा तो दूँ, मरने से पहले दुल्हा बना तो दूँ, तुसीं लाड़ी मौत नूं विआहणा है, तुहानूं मैं पूरा दुल्हा बना के तोरना। गुरु प्यार वालिओ, जदों दोने साहिबजादे सिपाहियां दे नाल तुरे ने, जालम थले लैके गए ने, इस तरह खिलार दिता ते जलादां ने इट्टां लाउणियां शुरू कीतियां। एक गल इत्थे बड़ी ध्यान मंगदी है, जालम ने जदों इट्टां लाइयां ना, तो जिथों इट बिल्कुल फिट नहीं सी ना बहिंदी, तो राज मिस्त्री पता है की करदा, वो टुकड़ा उत्थों इट दा तोड़ दिंदा है। जालमां ने इट नहीं तोड़ी, बल्कि चपणियां उत्थों कट दित्तियां भी इट जिहड़ी है उस तरह ही रहनी है, तो चपणी नूं उत्थों ला के सुट दिता। तुसीं अंदाज़ा लाओ किवें खलोते होणगे। जदों खलोते ने, कंधां हौली हौली उत्ते होण लगियां, तो उस समय थोड़ा जिहा घबराहट महसूस की बाबा जोरावर सिंह ने। छोटा वीर आखदा वड्डे नूं, वीरे की गल, तेरे मुख ते उदासी क्यों, तेरे मुख ते निराशा क्यों। अगों जवाब दिता, कह लगे एक दिन बापू ने आखिया सी, ये फतेह सिंह छोटा है, इनू छोटा ना आखो, इन्हें दुनिया विच ओ कारज कर जाना जे वड्डे वड्डे भी नहीं करके गए, इनू छोटा ना समझो। सच अज बापू की गल याद आ गई, मैं इस करके हैरान हाँ, थोड़ा परेशान भी हाँ कि दुनिया विच आया तेरे तो पहला वा, पर तू मेरे नालों पहला बाजी जित के जा रहे हैं। तू बाद विच आया, मैं पहला आया, पर तू असल विच जिंदगी दी बाजी जित के जा रहे हैं, पर मेरे तो पहला। उत्थे फिर जदों दोबारा हौली हौली उत्ते होण लगियां, तो अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, उत्थे फिर साहिबजादियां ने एक होर बचन आखिया, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहाँ से। तुसीं सच नूं मिटाउण वास्ते अज ये सारा कारा कर रहे जे ना, पर याद रखियो सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहाँ से। डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से, उपदेश सुन लो तुम दिल के कान से, हम तुम्हें कह रहे हैं खुदा की जुबान से। ये सोचो रब ही साडे अंदरों बोलदा पिया। ये चंगी तरह सुन लवो कि एक दिन तुहाडा जिहड़ा आ राज भाग एक दिन मलिया मेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इन्हें सदा नहीं रहना, इन्हें हमेशा नहीं रहना। तो गुरु प्यार वालिओ, अगे फिर अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, साहिबजादे आखदे ने, हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले। वो कह लगे असी अपनी जिंदगी कुर्बान कर चले जे, पर असी बड़ियां दी जिंदगी बचा के चले, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। पर अगला बचन वो बड़ा प्यारा लिखे, कह लगे सिक्खी की नींह सिरों पे उठा चले। अपने सिरां ते अपनी कुर्बानी दे के सिक्खी दी नींह रखी है। ये सिक्खी को सौखी नहीं जे मिलती, सिक्खी सौखी नहीं मिलती। कदी दरबार साहब जाओ ना, एक विद्वान ने बड़ी प्यारी गल लिखी, वो कहता दरबार साहब जदों तू जावें तो घर तो तुरें तो बड़ी तेजी नाल तुरया कर, बड़ी तेजी नाल। पर जदों दरबार साहब की परिक्रमा में जावें तो हौली हौली ध्यान नाल तुरया कर, एक एक कदम सोच के रखिया कर। पुछण वाले ने पूछया, कह लगे भी घरों एडी तेजी नाल दौड़ के जाई, उत्थे जाके हौली हौली, कारण वो कह लगा प्यारिया जिहड़ी दरबार साहब की परिक्रमा है ना, असल दे विच उहदी एक एक इट थले हज़ारां हज़ारां सिखां दी कुर्बानी है, हज़ारां सिर पए ने। इस करके बड़े ध्यान नाल तुरी। कहण तो भाव ये सिक्खी इन्नी सौखी नहीं मिली, इन्हें बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। उन्हां अगों आखिया, हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले।
सिक्खी की नींव सिरों पे उठा चले, ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा हम लगा चुके। असी सिखां दी सल्तनत दा बूटा ला के चले हाँ, तो इस बूटे नूं संभालना किने है? असी। उस बूटे नूं संभालना किने? असी संभालना है। उन्होंने ला दिता, अज फर्ज बनता है असी उस बूटे नूं संभाल के रखी। जिस बूटे नूं साहिबजादियां ने लाया, गुरु प्यार वालिओ, जदों साहिबजादियां दी शहादत हुंदी है, शहादत की अजे जदों नीहां सिर तक आईयां, बेहोश हो गए तो कंधां डिग पईयां, बेहोश हो गए ना तो कंधां डिग पईयां। इतिहासकार लिखते ने कि जालमा ने उस समय अजे बेहोश ने, थोड़े थोड़े साह चलते ने, जालमा ने उस समय खंजर लैके ते ओ निक्कियां जिंदां दे इस तरह पैर फड़ के, बाहां फड़ के, ते जालमा ने सिर फड़ के इथों धौण तो उन्होंने वार किए, कोह के शहीद किया, कोह के शहीद किया। इस तरह खून के फुहारे फुट गए। निक्कियां जिंदां ने इन्ना तशद्दद, इन्ना जुल्म समय की हुकूमत वालों किया जाए तो गुरु प्यार वालिओ, जदों उन्होंने इस तरह कोह के शहीद किया गया तो फिर उस तो बाद माता गुजर कौर वो वेखदी अपने पोतरियां नूं, पर वो महान योधे सूरमे गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी की धर्म पत्नी वो किवें वेखदे रह सकदी सी। अज तक सानू ये दसिया गया भी ठंडे बुरज विच हौका लैके शहीद नहीं, वो दलेर सी। जदों ने वेख्या वो बुरज तो थले उतरी, उस दलेर औरत ने, उस महान मां ने सामने सिपाही दी तलवार खिंची, मुकाबला किया ते मुकाबला करते हुए शहीद हुई। एवें नहीं, मुकाबला करते हुए शहीद हुई ते शहादत दा जाम पीता। क्यों? सिख धर्म दे विच, दुनिया का इतिहास पढ़ के वेखो, सिख धर्म दे विच सब तो छोटी उम्र के शहीद भी मिलणगे ते सब तो वड्डी उम्र के शहीद, सब तो वड्डी उम्र बाबा दीप सिंह जी, ते जे छोटी उम्र की गल करो तो बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी, ते शहादतां दे जाम पीण वाले होर किन्ने सिंह सिंघड़ियाँ जिन्हां दियां गाथावां जिहड़ियां ने बयान ही नहीं कीतियां जा सकदियां। सो उन्हां जालमां ने जिथे साहिबजादियां नूं कोह के शहीद किया, माता गुजर कौर शहादत का जाम पींदे ने। अज दा वो दिन सी, सूरज छुप गया, हर पासे लोकां अंदर हाहाकार मच गई भी सरकार वालों इन्ना वड्डा जुल्म कहर कमाया गया। पता लग्या हुण एक निक्की जी जिहड़ी गल विच रह गई है, वो भी मैं पूरी करदियां समां रहिंदियां। जदों ठंडे बुरज दे विच माता गुजरी जी ते साहिबजादे सन, उत्थे एक होर पुरख रहिंदा है जिंदा नाम इतिहास ने लिखिया बाबा मोती मेहरा जी। बाबा मोती मेहरा जी जिहड़े ने वो बड़े इस घर दे श्रद्धालु गुरु नानक साहिब दे। अत दी ठंड सी, वो चाहुंदे सन भी मैं इन्हां नूं छुड़ा ते नहीं सकदा, पर अज मेरे कोल समा है, मैं थोड़ी जी सेवा करके ते अपने जीवन नूं सफला कर सकदा। हुण वेखो सेवा जिहड़ी है ना, वो कितनी वड्डी कुर्बानी कई बारी मंगदी है। महाराज ने सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए, सेवा भी कई बारी इस तरह नहीं होंदी, अपना आप कई बारी कुर्बान करना पैंदा है। बाबा मोती मेहरा जी घर बार अपना वेच के, गहने गट्टे वेच के जो धन इकट्ठा किया, थोड़ा जिहा बर्तन विच दुध लिया ते वो जिहड़े सिपाही खलोते सन उन्हां नूं वो लालच, वो दौलत दे के ते माता गुजर कौर कोल जाके आख्या, माँ अत दी सर्दी है, ये थोड़ा जिहा दुध है, इनू पी लै, हो सकता है कह लगे थोड़े जे दुध नाल तुहानूं थोड़ा जिहा आराम मिल जाए। माँ ने आख्या नहीं पुत्र, ये जालम तेनू छड्डणगे नहीं। उन्हें आख्या माँ बस जिंदगी की ख्वाहिश खत्म हो गई, तेरे चरना दी आ तुल मात्र सेवा मिल गई, मेरा जीवन सफला हो गया, हुण जिंदगी की ख्वाहिश भी नहीं। वो बाबा मोती मेहरा जी
ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਕੇ ਰਸ ਕੱਢੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਰਸ ਕੱਢੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਨਾਹ, ਜੋ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ, ਮਿਟਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਣ ਤੈਨੂੰ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਸਰਹੰਦ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਖੀਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आप सारियां संगतां ने निरंतर रोज़ बड़ा मान दिता है, सत्कार दिता है ਅਤੇ बड़ी एकाग्रता दे नाल आप जी ने इतिहास नूं श्रवण कीता है। यतन करियो अपने घरां दे विच सिੱਖੀ ਨੂੰ, सिੱਖੀ दे बूटे नूं साਂਭ के रखियो। अपने बच्चियां दे केसां नूं, अपने आप नूं ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਵਿਰਥ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ।